This call is now being recorded. सर 10 o'clock हो गए। नित्य निरंतर ये शाश्वत अनंतम तन मन आत्मा का योगी आध्यात्म आत्म शांति मनः शांति विश्व शांति कुरु योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं कुरु विश्वं पनि सागरे गरे नि ग म पनि नि सा यम नियम आसन लाए आत्म अनुशासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा शुद्ध करे मन भावना शुद्ध करे मन भावना ध्यान लगा समाधि में जा सुख दुख परे आनंद को पा ध्यान लगा समाधि में जा सुख दुख परे आनंद को पा ऐसे जीवन की कामना करो योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कर्म भक्ति ज्ञान योग से पावत तन मन में ऊर्जा चेतना जागत हठ राजयोग देत सुदृढ़ शरीरा दूर करे ईर्षा द्वेष विस्मय की पीड़ा निरोध अंत मन तन को करो योगमयं विश्वं कुरु विश्वं कुरु चिंता से मुक्ति कार्य में कुशलता उत्साह संग संग चलने
नमस्ते टू यू ऑल। मैं कनुप्रिया। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। फॉर टुडेज सेशन वी हैव 3 dignitaries, मिस्टर जय शंकर, मिस अंजना सिन्हा एंड मिस्टर अमित कुमार। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इन तीनों का स्वागत करते हुए। मिस्टर जय शंकर, with an overall experience of more than 25 years in culture arena, is currently working as a drama educator in PNPS since 2011 and as a culture coordinator with famous NGO Nishtha since 2005. As an actor, he worked with prestigious organizations such as Theatres, Commercial Theatre Company, Ramkarni, Kolkata, India's one of the best theatre companies, Prangan, Patna, organizer of Patliputra Natya Festival, and Song and Drama Division, Delhi, Government of India. Mr. Jay has been working diligently with various profound theatre personalities such as Abhay Sinha, मैम Krishna Ganguly, Prem, मैम मुझे किसी की हाँ जी बेटा, Shyamanand Jalan. He has done more than 1,000 stage shows, street plays in different parts of India and abroad as well. He has participated in famous theatre festivals in India, including एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी बेटा बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम मैम अब आ रही है आपकी वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके, गुड। So he has done more than 1,000 stage shows, street plays in different parts of India and abroad as well. He has participated in famous theatre festivals in India, including National Festival Mumbai, International Natya Festival Cuttack, Nandikar Festival Kolkata, Prithvi Theatre Festival Mumbai, 160 Years Indian Arrival Day, Trinity and Tibet, and Patliputra Natya Festival Patna. Mr. Jay has acted in more than 70 plays named Rudali, Himmat, Mai, Samayatra, Court Martial, Lanchan, etc. And he has directed more than 20 plays such as Chui Mui, Gandhi, Tova Sekh Singh, Meri Dilli, Ganga, etc. Mr. Jay has choreographed many prominent cultural programs at Rashtrapati Bhavan, Trimurti Bhavan, and Prime Minister House, Delhi, for Republic Day since 2005. He has choreographed many cultural programs organized by Ministry of Youth Affairs and Sports Delhi, such as Youth Day at National Stadium, Global Yoga Festival, Sadbhavna Divas at Mahavalankar Hall, Commonwealth Youth Day. He has also choreographed dances like Thar Festival Jaisalmer, Taj Festival, Simanchal Yatra Konark Festival Khajuraho, and Posh Festival, Shantiniketan, that is in West Bengal, etc., organized by Culture Ministry and Zonal Center of India. Mr. Jay has written some famous plays such as Charokha, Buddha, Gandhi, Dheere Dheere, etc. He has also written lyrics of famous songs like Nari Shakti, स्वच्छ भारत एंड योगमयम विश्वकर्म, जो हम डेली सुबह सुनते हैं सेशन शुरू करने से पहले ग्लोबल योग अलायंस में। He has also done masters in economics from Patna University and diploma in dramatics, and he's a diploma holder in Kathak too.
Now I come to Miss Anjana Singha. She is currently working with Delhi Public School as primary teacher, dance. She also organizes dance workshop and also has worked with Bhai Parmanand Vidya Mandir, Surya Niketan, New Delhi at TZT Dance and NK Bagrodia Public School, Rohini, New Delhi as dance teacher. On international front, she has represented India in classical dance and folk dance organized by Global Yoga Alliance and Portuguese Yoga Confederation at Beja, Portugal. International Yoga Festival at Buenos Aires, Argentina, National Film Festival of China, Global Yoga Festival, Commonwealth Day, Singapore. On national front, she has twice choreographed culture program at Rashtrapati Bhavan and also organized and choreographed the culture program at NK Bagrodia Public School. She has participated in culture program in Rashtrapati Bhavan, which was organized by Ministry of Youth Affairs and Sports India. She has been awarded Best Classical Dance for Folk Dance, Yoga Dance, and Artistic Yoga. Excuse me, ma'am, your mic is mute. Yes, ma'am, your mic is mute. Yes, ma'am. Okay, now it's fine? Yes, ma'am. Yes, She ma'am. has Sangeet Bhivakar in dance, Kathak dance. She has also done her graduation and masters in political science. Now, Mr. Amit Kumar, he has completed his graduation in economics from Jamia Millia Islamia. Currently, he is pursuing his masters in economics. He has also done BA from Delhi University. He is a member of the famous NGO Nishtha and is also a founder of SuperX campus. So with this, I welcome you all, three of you, and I'm handing over the session to you all. Thank you. Please welcome and start the session. Thank you. भैया, your mic is unmuted. आप अनम्यूट कर लो जय, आवाज नहीं आ रही है आपकी माइक को। हाँ Okay, now, हेलो, आवाज आ रही है? एक बार सब Yes. बता देंगे बोलने के लिए। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले धन्यवाद कि हमारा मैक्सिमम हमारे बारे में इंट्रोडक्शन बताने हैं। बट एनीवे, सबसे बड़ी बात है कि मैं बच्चों के साथ करना मुझे बहुत पसंद है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। तो शुरू करने से पहले हम देख के आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ लोग योगा एक्सपर्ट हैं, कोई डांस में एक्सपर्ट हैं, कुछ नौकरी करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ उनसे छोटे हैं, कोई और बड़े हैं। क्या मेरे मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के यहाँ पर पर्सनालिटीज हैं। यहाँ पे दे आर द बेस्ट क्वालिटी है हमारी ये वर्कशॉप का, थिएटर वर्कशॉप का। तो एक बार क्लैप बनता है हम सबके लिए, एक बार क्लैप कर लेते हैं सभी लोग अपने लिए। ओके, वाह, थैंक यू। वाह, वाह। अब बात करते हैं, थैंक यू। ओके, अब मैं देख रहा हूं कि असल में क्या होता है कि जब हम सामने बैठकर और लोगों के बीच में बैठकर जब हम थिएटर करते हैं या वर्कशॉप करते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हम बातें करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ गेम खेलते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात है कि हम वर्चुअल अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? तो ऑनलाइन के लिए क्या होता है कि हम कितना ट्रेंड है कि नहीं? तो ट्रेंड होने के लिए हमें थोड़ा सा एक छोटे कुछ एक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं कि हम वास्तव में क्या वर्चुअल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट और जितने हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि थिएटर में जब तक हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, आई कंटेक्ट नहीं होगा, तो आप प्रॉपर मजा नहीं ले पाएंगे थिएटर एक्टिविटी। तो प्लीज ओपन योर कैमरा, सभी लोग आप लोग ऑन कर लें, बच्चे सभी लोग ऑन कर लो, मजा तभी आने वाला है। ये अब हम एक छोटे से काम करते हैं कि हम अपने पहले माइक चेक करते हैं। वैसे वर्चुअल हमारे जो मीटिंग है वो कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले छोटे से एक्टिविटी करके देखते हैं,
हम लोग क्या करेंगे कि माइक, मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग अपने वीडियो ऑफ है आपका, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम वीडियो, सभी लोग अपना वीडियो ऑफ करेंगे, राइट? मैं नहीं करूंगा, बाकी सभी लोग अपना वीडियो ऑफ करेंगे और वीडियो ऑफ करने के बाद अपने माइक को चेक करेंगे। माइक चेक करना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे आप। जैसे कैसे करते हैं माइक चेक? हेलो 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 हेलो, आवाज मेरी, आप आवाज सुन रहे हैं? हाँ हेलो, आवाज जा रही है आपके पास, राइट? हम ऐसे माइक चेक करते हैं ना। एक माइक चेक करेंगे। माइक चेक करने का और भी तरीका है, आप आपस में बात भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अमित को जानता हूँ तो भी बोल सकते हैं, हाँ अमित भाई मेरी आवाज सुन पा रहा कि नहीं सुन पा रहा? अंजना जी आवाज सुन पा रहा? समथिंग। अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो भी उसका नाम, क्योंकि हम एक इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं। हाँ जी ध्रुव जी, माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अच्छा बात करेंगे, बताएंगे आप अपने बारे में, आप समथिंग, ऐसे बहुत सारी बात। जय सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके, तो मैं आपको जय सर, बोल रहा आवाज हूँ ना काफी ना, आवाज बहुत फट रही है। जय सर, अगर कुछ हो सकता है तो माइक में ना बहुत फट फट के आ रही है आवाज। ओके, एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना लीड हटाकर चेक करता हूँ, एक मिनट। ओके, अब मेरी आवाज कैसी आ रही है? अब ठीक आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं यही बता रहा था आप लोग। गुड गुड। तो हमें ये करना है क्या कि अपने माइक को ऑफ करना है और अपने माइक्रोफोन को, अपने माइक को चेक करना है। और इसमें चेक करने का तरीका क्या है? हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? एक दूसरे से आप बातें करो, उनसे जिनको आप नहीं जानते हो। जैसे मैं क्या नाम है, मियांशी को नहीं जानता, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ, हाँ हेलो हेलो मियांशी, कैसे हो आप, कहाँ से हो आप, बताओगे आप? ये तो हम नहीं जानते, फिर भी एक दूसरे को हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं अपने क्रॉस लगाऊंगा। बेटा आप सुनो, है ना? और जैसे मैं इसे क्रॉस लगाऊंगा और आप लोग अपने बोलने का जो है, आप माइक चेक कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप? बंद कर देंगे। एक बार चेक करते हैं, ऑल ऑफ यू, ऑफ योर कैमरा को ऑफ कीजिए, आप लोग सब लोग कैमरा ऑफ कीजिए और माइक चेक करते हैं। देखते हैं कौन कितना बढ़िया सा चेक करता है अपने माइक को। जल्दी जल्दी चेक करते हैं, और कैमरा ऑफ करना है। Hello, बहुत बढ़िया। Hello, sir. टाइम आउट। ओके, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत बढ़िया चेक किया। ओके, हेलो। अब क्या करते हैं, हमने अपना माइक चेक कर लिया, अब थोड़ा सा कैमरा चेक करते हैं। मैं देखता हूँ कितना तैयार हो आप लोग। मैं क्या करूंगा, कैमरा ऑफ, आपको ऑफ करना है, मैं बोलूंगा ऑन, आप ऑन करोगे, ठीक है? मैं चेक करता हूं आप लोग से। कैमरा ऑफ, कितना स्मार्ट, कितना फास्ट हो आप लोग, मैं चेक करता हूं। कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, कैमरा ऑन। ओह सुपर, वेल डन। आपने माइक चेक कर लिया, कैमरा चेक कर लिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होता है कि जब हम वर्चुअल और ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं, एक चीज और चेक करना होता है। क्या चीज? चैट बॉक्स। आप लोग कितना स्मार्ट हो, चैटिंग करना आपको आता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। लेकिन कैसे चेक करेंगे, उसका एक तरीका है। आप लोग जैसे हेलो, कोई हेलो बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कैमन छो कोई बोलता है, सत श्री अकाल जी कोई बोलता है ना? तो इतने सारे लैंग्वेज है हमारे देश में और अलग अलग तरीके से बोलने का तरीका है, राइट? तो हम क्या करेंगे कि चैट बॉक्स पे जाएंगे और एक
हेलो लिखेंगे अपने अपने तरीके से, कैसे हैं जी, क्या है। तो टाइम इज स्टार्ट, 1 2 3 एंड गो। नाउ स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या लिखते हो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। चैट बॉक्स में जाकर लिखना है। ओ वाओ, हेलो, हाउ आर यू, सैल्यूट, क्या बात है, आप कैसे हो जी, कैमन शो, हेलो हेलो, हाउ आर यू, ओ केम शो, हाय, चैट बॉक्स में कैसे वाओ, सुपर। ओके, कैमरा ऑन रखना है, वेरी गुड, सुपर। टाइम आउट, हमें 30 सेकंड का ही काम करना था, 30 सेकंड के अंदर ही हमें इतना फास्ट होना है कि 30 सेकंड के अंदर काम कर लिया। वेल डन, गुड। अमित, मिस्टर अमित, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। अब तो मजा आएगा जब सामने देखेंगे ना, तो कैमरा ऑन करके करना है, ठीक है। मिस्टर अमित जी, कोई ऐसा कोई एक लाइन आप बताएंगे इसमें से कि किसी ने बड़ा डिफरेंट टाइप से हेलो किया है, आप एक बताएं जो डिफरेंट टाइप का हो। ओके, मैं एक बार देखता हूं इसमें से। मिस्टर अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज, वीडियो ऑन रखे सभी लोग। और इसमें एक काम करते हैं कि आपको एक बच्चे का नाम बताइए, किसी एक पर्सन का जो डिफरेंट टाइप से बोला है। ओके, हेलो। हाँ अमित जी, क्या बात है। ओके, एनीवे मैं इससे बात करता हूँ। अगर समीर नाम से कोई है, और वीडियो ऑन करो समीर। हेलो समीर, वीडियो ऑन करते हैं जरा सा, सभी लोग वीडियो ऑन करें। मजा तब आएगा जब वीडियो ऑन करेंगे, दूसरे को देख कर बात करेंगे। हाँ, हेलो समीर, आपने कुछ, ओके समीर, आपने क्या बोला, अनम्यूट करके आप बताओगे क्या लिखा आपने? सर हमने पंजाब में सब बोलते हैं सत श्री अकाल जी, तो हमने सत श्री अकाल जी लिखा। कैसे लिखा, बोल के सुनाओ जरा सा हमें, अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे? सत श्री अकाल जी। यस, सत श्री अकाल जी, गुड, वेरी गुड। एक बार स्तुति आप भी बोलो बेटा, एक बार अनम्यूट करके आपने क्या लिखा स्तुति, एक बार आप बोलो। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, स्तुति आपने क्या लिखा था बेटा? स्तुति आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, एनीवे नाउ स्टार्ट। हम एक छोटी सी एक्टिविटी था जिससे कि हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएं और एक दूसरे को जानना शुरू कर दें। नाउ ऑल ऑफ यू, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है अगर हम थिएटर कर रहे हैं तो, राइट। मैं दिख रहा हूँ, केवल मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको नहीं दिख रहा है, तो कैमरा दिखना जरूरी है। हम जब तक दूसरे को आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर, राइट। तो सभी लोग कैमरा ऑन कर ले। ओके, गुड, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे थे कि ये मैं निम्पल सभी लोग के लिए मैं बात कर रहा हूं, बच्चे भी सुनेंगे, बड़े भी हैं, कि योग का जो आज हम जो है ये कार्यक्रम में और थिएटर के द्वारा हम खुशी ढूंढ रहे हैं, राइट। थिएटर में मस्ती कैसे करते हैं, थिएटर में योग और थिएटर, योग के कार्यक्रम में हम थिएटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग और नाटक दो अलग चीज नहीं है। योग और नाटक बड़ा ही एक पुराना संबंध है दोनों में, कह सकते हो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अटूट संबंध है, शरीर और आत्मा का संबंध है दोनों में, राइट। जैसे अगर हम आप लोग अगर योग की बात करते हैं तो दो लोग समझ में आता है, भगवान शंकर और कृष्णा। और वैसे ही अगर हम थिएटर की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, तो शंकर नटराज और कृष्णा, 16 कलाओं के परिपूर्ण कृष्णा की बात करते हैं। तो योग और जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट है, जो नाट्य कला है, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर हम योग भी जानते हैं और आर्ट भी जानते हैं तो हमारे लिए ठीक है। ऐसे जानते हो, अगर टेक्निकल भाषा की बात करें, कुछ हम ऐसे हम ज्यादा बातें आज करेंगे नहीं उसकी। हम हमारे सनातन धर्म के हिसाब से योग को पंचम वेद बोला गया है, जिसमें सारे 8 कलाएं जो हैं उसमें मिलाया हुआ है, राइट। और उन 8 कलाओं में
डांस भी है, म्यूजिक भी है, पेंटिंग भी है, राइटिंग भी है, हम पोएट्री फॉर्म वगैरह करते हैं वो भी है, बड़ी सारे कलाओं का समावेश है, यानी कि एक संपूर्ण कला है देखा जाए तो नाटक। ओके, जब एक संपूर्ण कला हम सीखते हैं तो उसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी का भी एक संपूर्ण विकास होता है। अगर हम नाटक करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता है, राइट, कि आपकी पर्सनालिटी अलग से दिखती है अगर आप कंटिन्यू अगर थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट करते हैं, राइट। यहाँ तक कि नए के जो कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अभी नए चीज में कि एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए बच्चों को कि हर बच्चों को कुछ ना कुछ आर्ट तो आना ही चाहिए। चलो हम आज की बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया जो है वो रंगमंच है, राइट। और इस रंगमंच में हम लोग जो है ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, घर पे बैठे हुए हैं और बाहर निकलने से डर रहे हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं से डर है और उस डर को हमें भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है रंगमंच यानी कि थिएटर। और जो है ना ट्रेन द ब्रेन आज का जो कार्यक्रम हम इसीलिए इस पे नाटक लेकर आए हैं कि नाटक के द्वारा अपने ब्रेन को कैसे करते हैं, क्यों कि खुश होना द बेस्ट चीज है और हम खुश होते हैं तो ब्रेन हमारा ठीक रहेगा, राइट। और नाटक को रंगमंच को हम सुख का मंच कहते हैं, यानी कि खुशी का मंच कहते हैं। और यहाँ में इतने सारे एक्टिविटी होते हैं जहाँ आप टेंशन फ्री हो सकते हो, टेंशन मुक्त हो सकते हो, और जहाँ मुक्ति होती है, मुक्ति यानी कि फ्री आप होते हो, कोई टेंशन नहीं है, तो क्या होता है, खुशी होती है, हैप्पी होता है। तो शुरू करते हैं आज के हम सबसे बढ़िया जो है एक वार्म अप से शुरू करते हैं, जिसको अभी करवाएंगे अंजना मैम, और आई हुई है वो आपको बहुत बड़ी डांसर हैं और आपको एक वार्म अप करवाएंगी। तो अंजना मैम आप एक बच्चों का हमारे साथ एक सभी को करना चाहिए, ऐसे मैं भी करूंगा, एक वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप के साथ ओके अंजना मैम सुन पा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। Yes. First of all of you unmute yourself, switch on your video so that I can see you properly. Okay. So children, for yes. हम लोग अभी एक्चुअली माइंड को पीस रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरत होता है। यस और नो? यस मैम। बॉडी को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरत होता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत ही इजी स्टेप से स्टार्ट करूंगी। इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन। सो ऑल ऑफ यू स्टैंड अप and stand at the back so that I can see you properly. Okay? Yes, madam, we will start. Everyone see me properly? Bolo, yes, madam, we will do. Bolo, yes, madam, we will do. Try to follow me. Okay? Everyone try to follow me. Okay मैम। So let's start and enjoy. इनको पूरे स्किप अंजना मैम योर माइक इज म्यूट। चलो ऐसे करो, एक सही आप खड़े होकर इनको देख करके। आपका माइक म्यूट है। Okay. Yes. Now, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. You're audible now. So first we have to move our head. We have to do our head exercise. After that, shoulder, arms, hands, then waist, then knee. After that, leg. Okay. After that, some stretching. Okay. So let's ready. चलो आप भी करो, इनको देख करके वैसे ही करना है यार। All of you stand up.
कोई गाना लगा म्यूजिक लगाए फिसला ये फिसला ना वाओ वेरी गुड यस मैम वेरी गुड वेरी गुड मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस यस सर यस यस सर ओके बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, अपने जगह पे खड़े रहना है। ऑल ऑफ यू खड़े रहो अपने जगह पे, सभी लोग खड़े रहो। ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। और खड़े रहने के बाद हमें क्या करना है कि हमें बॉडी को शेक करना है। हम पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर सभी लोग करेंगे। मैं बोलूंगा जैसे आया शेक शेक, जैसे आया शेक 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 शेक, और लंबा सांस लेकर ऊपर बैठा है। जैसे लंबा सांस लेते हुए ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ना है आवाज निकालते हुए। देखो ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा में भी होता है और थिएटर में भी होता है। तो मैं कुछ ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके लिए है जो आप इंजॉय भी कर सको और थोड़ा मस्ती भी कर सको। हम क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी सर ये एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बेटा। सर आपकी Yes? वॉइस ऑडिबल नहीं हो पा रही है। सर आप एक बार मैंने जो आप बना रहे थे आप वो दोबारा कर दोगे क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा कट हो रही थी।
Yes, sir. ओके ओके, हाँ, तो हमें क्या करना है, बॉडी को शेक करना है। जैसे शेक करते हैं, हैंड के साथ बॉडी को शेक किया, शेक 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 एंड शेक, और लंबा सांस लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर जाकर फिर सांस को छोड़ना है। आवाज भी आएगी, साथ में आवाज भी आना चाहिए। ओके, तो हम करें एक साथ, समझ में आ गया तो 1 2 3 स्टार्ट। शेक 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 शेक, शेक 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 शेक, फिर शेक शेक, वंडरफुल, वेरी गुड, गुड। ठीक है, ऐसे हमारे पास वीडियो ऑन रखो, क्योंकि हमें आप लोग को भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी एक्टिविटी करना है, वीडियो ऑन रखना है हम लोग को। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोग से बच्चों कि हम जिस तरह से अभी देखो सांस का एक्सरसाइज किया, आप योगा में भी देखते होगे, सांस का एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होता है कि आपके डायलॉग पे, आपके आवाज पे, आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है सांस की एक्सरसाइज। नाउ अब एक काम करते हैं, हम सभी लोग ऐसे पोजीशन में बैठ जाओ जैसे आप किसी का फोटो क्लिक करना है, इमेजिनरी कैमरा आपके हाथ में है। ओके, ऑल ऑफ यू लाइक, जैसे आप कैमरा से फोटो क्लिक करते हो ना आप लोग, बट सेल्फी की तरह नहीं, आप कैमरा किसी का फोटो खींच लो। एवरीवन, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सभी लोग प्लीज टेक दिस पोजीशन कि आप कैमरा से फोटो खींच रहे हो। लाइक अंजना मैम, और अंजना मैम जो है वो 2 3 4 डांस के पोस्टर बनाएंगी, और आप उस फोटो को खींचोगे। खींचने का मतलब यह है कि कितने फोटोग्राफ निकाल सकते हो 30 सेकंड के अंदर। ओके अंजना मैम, अगर आपके पास मास्क है तो आप लगा के एक बार आप बॉडी का मूवमेंट आप करेंगे, और हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपको इमेजिनरी कैमरा से आपका फोटो निकालेंगे। राइट, Okay. So let's play the music or still posture. विदाउट म्यूजिक आप केवल पोस्टर बना की लीजिए, और हमारे सारे, हाँ, सारे बच्चे हैं चाहे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, एक इमेजिनरी कैमरा से आपका फोटो क्लिक करेंगे। हाँ, आप अमन जी, आप एक काम करेंगे, अंजना जी को आप मेन स्क्रीन पर ले आए जिससे सारे बच्चे देख सके, उनको सारे पार्टिसिपेंट देख सके। हाँ, एक उस इमेजिनरी कैमरा से हम फोटो क्लिक करते हैं। नाउ 1 2 30 सेकंड है, 1 2 3 स्टार्ट। यू टेक डिफरेंट पोज, यस, और जल्दी जल्दी फोटोग्राफ क्लिक करना। देखता हूं कितना ज्यादा फोटोग्राफ कौन निकाल सकता है। वाह, सुपर, वेल डन। ओके, कैमरा ऑन रखो, फिर मैं देखूंगा आप लोग फ्लो पर क्लिक कैसे कर रहे हो। कैमरा ऑन रहेगा तभी मैं देख पाऊंगा आप लोगों को। ओके, वेल डन, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। अब मुझे आप लोग, ओके ना, थैंक यू। अब हमें ये बताएंगे बच्चे कि आपके पास जो टाइम दिया गया है, आप कितने फोटोग्राफ निकाल पाए हो, कोई बताएगा? सर म्यूट करके आप सर, बोल। सर 10 photographs. सर 35 35 5. Sir 5. 10. 15. Sir 20. Sir 5. थैंक यू, वेरी गुड। 20. Sir 20. 5. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बड़े हैं क्या वो एक्टिविटी तो बता सकते हैं, बड़ा बताने। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू, बता सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी किया है उन्होंने। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तब उस चीज को समझ पाते हैं कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप उस चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगे उसका मतलब नहीं समझ में आता। थिएटर मीन्स, अभी हमारे जो कंसेप्ट है कि थिएटर हमारी एक परफॉर्मिंग आर्ट है जिसको बच्चों करते हैं। ये अगर आप थोड़ा सा कुछ कोई है ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा एक थिएटर थेरेपी, अगर हम बात करें बड़ों की बात, इसलिए बहुत ज्यादा मैं थिएटिकल भाषा की इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थिएटर थेरेपी द बेस्ट थेरेपी है। कोई डॉक्टर के पास जाने, बहुत सारे ऐसी जगहों पे काम आता है
कि लाइफ में हमेशा काम आएगा इस थेरेपी जो है आपको। मैं थेरेपी नाम नहीं ले रहा हूँ कि कोई डिफरेंट चीज है, अलग चीज है, मैं एक्टिविटी नाम ले रहा हूँ उसको लेकर। तो आपको जब देखा कि आपके हाथ में जब इमेजिनरी कैमरा था आप लोग के पास, आपने बहुत सारे फोटो को 10 निकाला, कोई 20 निकाला, कोई 50 निकाला, कोई 100 निकाला, राइट। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर मुझसे भी पूछा जाए कि आपने कितने फोटोग्राफ निकाले, नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितने फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। वाई? पता है क्यों? ये पूरा डिपेंड करता है कैमरा पर, इमेजिनरी कैमरा पर। क्योंकि एक इमेजिनरी कैमरा की इमेजिन करने का मतलब क्या उसको बोलते हैं, उसको मल्टीपल लेंसेस हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी कुछ भी, कोई संभावना नहीं। लेंस कैसा है इसका, इसके अंदर कितने टेक्निक सकते हैं, कितने क्रिएटिविटी इसके अंदर हो सकता है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होता जब हम इमेजिन की दुनिया में जाते हैं तो, राइट। ठीक वैसे ही जैसे एक इमेजिनरी कैमरा से आप जब फोटोग्राफ लेते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक वैसे ही जो थिएटर एक्टिविटी के द्वारा अगर बात करें हैप्पीनेस की, खुशी का, एग्जाम का टेंशन से फ्री होने का, लॉकडाउन का टेंशन से मुक्त होने का, फैमिली में एंजॉय करने के लिए अगर हम कुछ चाहते हैं, तो सच्चाई यही है कि अगर आप थिएटर एक्टिविटी, थिएटर गेम्स खास करके अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर पेरेंट्स करते हैं, तो इतनी संभावनाएं निकल जाती है कि वो मौका ही नहीं मिलेगा आपको कि हम बाहर हैं कि घर में हैं। आप इतना एंजॉय कर सकते हो थिएटर बेस्ड एक्टिविटी से, राइट। तो थिएटर हर को करना चाहिए, हर पेरेंट्स को। मैं तो सीधे बोलता हूं कि अगर पेरेंट्स हैं यहाँ बैठे हुए कि बच्चों का फंडामेंटल राइट सही है, जैसे खाना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, वैसी थिएटर एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। वो तब पता चलेगा जब बच्चे लगातार उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, राइट। अब बात कर रहे थे कि गेम का, एक सिंपल सा एक मिरर गेम जो है अभी अंजना मैम आपको करवाएंगी, जिसके अंदर आप लोग को ध्यान देना है आई कंटैक्ट। अब जहां पर अंजना मैम कर रही होगी तो पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पर रहेगा और पूरा आई कंटैक्ट देके उनका हमें कॉपी करना है। जैसे मिरर में हम कैसे किसी चीज का कॉपी करते हैं, है ना। मिरर में जब खड़े होते हैं तो हमारा राइट होता है, तो मिरर में लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट होता है, हमारा राइट होता है, और आई कंटैक्ट पूरा वहां होगा। तो अंजना मैम आपको एक गेम करवा रही हैं जिसका एक्टिविटी है, इससे कंसंट्रेशन और आपका जो आई कंटैक्ट जो है काफी इंप्रूव होता है इसके थ्रू। तो हम एक बार करते हैं, बहुत ही संभावनाओं से बहुत ही बेस्ट है एक्टिविटी। तो अंजना मैम एक बार मिरर गेम आप बच्चों को साथ करवाएं, उसके बाद हम कुछ और गेम के पास जाएंगे और पेरेंट्स इसको ध्यान देंगे कि ये सारी एक्टिविटी का बेनिफिट क्या है। जब बच्चे करेंगे तो महसूस करेगा। अगर आप भी करो कभी इस सारी एक्टिविटी बच्चों के साथ, मिरर गेम खेलो, चुटकुले खेलो, रोल प्ले करवाओ, ठीक है। नाउ स्टार्ट अंजना। ओके, बिल्कुल भैया। सी चिल्ड्रन, अभी जो आपको करना है, मेरे साथ आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। आई को आप दोनों आईज को आपको कैमरे से बाहर नहीं करना है, इट मीन्स मेरे से नजर नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप्स होगा, बहुत ही इजी मूवमेंट्स होगा, आपको स्टेप फॉलो करना है, बट आपको आईज मूवमेंट नहीं करना है, आई कांटेक्ट करना है। किसके साथ? मेरे साथ और कैमरे के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Ready? Now all of you stand up. All of you stand up. मैम आपका फेस नहीं आ रहा। आएगा? अब आ रहा है? अब आ रहा है? यस मैम। अमन, अगर आप मेरे पिक्चर को ऑन मेन स्क्रीन पर ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अमन? Yes, ma'am. They can do their self actually. Okay, okay. So all of you stand up. All of you stand up. And follow my steps, okay? Try to follow. आप जितना कर सकते हो आप उतना ही करोगे, ठीक है? मैम आपका फेस फिर से नहीं आ रहा। वेट, जब मैं बैक में जाऊंगी तो फेस आ जाएगा, ठीक है? वेट, आ जाएगा। अब आ रहा है? Am I visible? Am I visible? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, थैंक यू अंजना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों ने कॉपी भी कर रहे थे, बच्चे बहुत ज्यादा आपका कॉपी किया बच्चे। ओके ओके, नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ओके, अब एक बात करते हैं, अगर मेरी बात अगर सब लोग इसमें थोड़ा सा बड़े भी इन्वॉल्व हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स पे जाके मैसेज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अमित इसमें इन्वॉल्व हो थोड़ा सा। मैं दिख नहीं पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ अमित, बिकॉज उसका वीडियो नहीं दिख रहा है नीचे का मेरा, शायद हो सकता है कहीं है वो। तो मैं इसके लिए एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा गेम बताना है बच्चे, जितने हम पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई ऐसा गेम बताओ आप लोग मैसेज में जाकर कि जो करीब करीब सब लोगों ने खेला होगा। कोई ऐसा गेम बताओ आप लोग, ऐसा कौन सा गेम है जिसको आपको लगता है सब लोगों ने जरूर खेला होगा। हाइड एंड सी, हाइड एंड सी, सर लूडो। लूडो, yes, लूडो, हाइड एंड सीक, सांप सीढ़ी, यस सर, लूडो। तो कैरम, यस सर, क्रिकेट, क्रिकेट, बैडमिंटन, ओके गुड, फुटबॉल। ओके वेरी गुड, ओके ओके। सर बैडमिंटन, फुटबॉल एंड लूडो। ओके ओके, यानी कि लूडो, लूडो मेमोरी लूडो गेम। में ऐसे भी बातें हो रही हैं। अब एक ऐसा गेम बताना है आप लोग को कि जो लगता है कि सबने नहीं खेला होगा। वो कौन सा गेम है जिससे सबने नहीं खेला होगा। गोल्फ, गोल्फ, हॉकी, टेबल टेनिस और जिम्नास्टिक। टेनिस। वाओ, वेरी गुड, यस सर, वाओ। टेबल टेनिस, बॉल, ओके ओके, सर क्रिकेट, कोई ऐसा गेम ओके ओके गुड। अब एक ऐसा गेम बताना है आप लोग को, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा गेम है जो सबने नहीं खेला। हाँ, एक ऐसा गेम बताओ आप लोग जो कभी भी आप खेलते वक्त आपने मना किया हो। मैं किसी एक से पूछूं या दो से पूछ सकता हूँ क्योंकि सबके लिए नॉलेज। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसा गेम बताना है आपको, या फिर मैसेज पे जाके डाल सकते हो। मैसेज पे जाकर बोलने में क्या कि सब लोग सुन नहीं पाएंगे, जो आपने कभी खेलने से मना किया है। कोई ऐसा गेम बताओ कभी आपने खेलने से मना किया है। चेस, कौन सा गेम बताओ। चेस, हॉकी, यस, हॉकी, हॉकी,
हाई वाओ, स्केटिंग, वेरी गुड, हाई स्केटिंग, अच्छा एक ऐसा गेम बताओ, ओके, बड़ा इम्पोर्टेंट जो आप लोग को बताना है कि कोई एक ऐसा गेम बताना है आपको जो अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ आप खेले हो, अपने दोस्तों के साथ खेले हो, फैमिली मेंबर नहीं, अपने दोस्तों के साथ अभी अभी खेले हो 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर। Cycling and hide and seek, Ludo, फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, Carom. फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, जो घर के बाहर के फ्रेंड्स हैं हमारे। फुटबॉल, Yes, sir. Badminton. फुटबॉल, Sir, Ludo. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, Cycling. वेरी गुड। मैंने ये ओके ओके वेल डन। अब मैंने ये देखा कि जैसी एक बात आती है कि आप लोगों ने कोई ऐसा गेम जो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी फ्रेंड्स के साथ खेला है, तो बहुत सारे कम क्वेश्चन आया। गेम 2 तरह के होता है कि इंडोर गेम, आउटडोर गेम। तो मैक्सिमम चीजें जो आया है वो इंडोर गेम का आया है। बिलियर्ड एंड स्नूकर, Ludo. अब आवाज आ रही है? ये आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपसे कि आप लोगों को देखा कि आज के जो सिनेरियो में हम स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बाहर जाना बंद है, तो कोई ऐसा गेम जो फ्रेंड्स के साथ खेलना है, बाहर खेलना है, वो पूरी तरह से हम नहीं खेल पा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे और घर पे भी है तो वही ऑनलाइन लूडो वगैरह खेल लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम गेम नहीं खेलेंगे, आउटडोर गेम नहीं खेलेंगे, कोई फिजिकली गेम नहीं खेलेंगे, मेंटली गेम नहीं खेलेंगे, तो पता है क्या होगा, हमारी ह्यूमनिटी है वो कम होता चला जाता है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। यानी कि हम सोचने लगते हैं कब तक घर में बैठे रहेंगे, बोर हो गए घर में बैठे बैठे। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा गेम खेलना है जिसमें मस्ती हो, फन हो, है ना, इक्वालिटी हो। अगर मम्मा के साथ खेल रहे हैं या पापा के साथ खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो पापा हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें बच्चा हो तो नहीं। गेम का मतलब होता है बराबरी का, प्लेफुलनेस। यानी कि गेम में तो सब एक जैसे होते हैं, गेम में रूल है तो सबके लिए एक जैसा होता है। तो कुछ ऐसा गेम खेलें जिसके अंदर प्लेफुलनेस हो और कुछ सीखने का भी है ना, जो हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों ठीक करता हो। तो ऐसे गेम के लिए आप देखोगे, कभी सर्च करना तो थिएटर एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो घर पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और खूब मस्ती। आप फील नहीं करोगे कि मैं बाहर हूँ कि अंदर हूँ, राइट। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं हम लोग कि पहले मैं बोलता हूँ कि आप लोग सभी लोग करेंगे, कि वीडियो ऑन करके करना कि मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। क्या है कि मैं अपने बॉडी को और बॉडी से और अपने हैंड से मूवमेंट से एक रिदम निकालेंगे, ठीक है। और रिदम का सीधा कनेक्शन अगर देखा जाए तो हम कनेक्शन की बात करें तो उसका माइंड से कनेक्शन होता है रिदम और मूवमेंट का। फिर मैं निकाल लेता हूँ। देखो, वन राइट हैंड यूज करो, वन पे थपकी, 2 पे चुटकी और 3 पे क्लैप। 1 2 3, 1 2 3। एक बार करके देखो राइट हैंड से, 1 2 3, 1 2 3। ओके, यस। देन लेफ्ट हैंड से करते हैं 1 2 3, 1 2 3, राइट। अब क्या करना है इसको कि अब दोनों हाथ से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इसके साथ हम एक पैटर्न और जोड़ रहे हैं, 1 1 2 3 एंड 4। थपकी चुटकी क्लैप चुटकी, थपकी चुटकी क्लैप चुटकी। अब इसको कैसे करते हैं, 1 1 2 3 एंड 4। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 1 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2 3 4। हमारा माइंड काम कर रहा है, बॉडी काम कर रहा है, वॉइस भी काम कर रहा है। इसको हम अलग अलग आवाजें डाल सकते हैं। एक बार करके देखना है कैसे पैटर्न बनाना कर सकते हो। इसमें कुछ भी आवाज देखो, बूम चक बूम, बूम बूम चक बूम चक बूम चक बूम, बूम बूम चक बूम चक बूम चक बूम, बूम बूम चक बूम चक, राइट। ऐसे बहुत सारे मस्ती आप कर सकते हो। पूरा अपने फर्श को आप ड्रम बना सकते हो, धूम धूम धूम। आकाश में खींचा हाथ,
है ना, ऐसे बहुत सारे मस्ती कर सकते हो और आपको फिजिकली मेंटली बेस्ट हो जाओगे। मतलब बड़ा मजा आता है ऐसे एक्टिविटी करने में। सर कौन से गेम्स बोलेंगे, थिएटर गेम्स बोलेंगे इसको? ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होता है। मैं देख रहा हूँ कि टाइम जो है, अगर आपके पास अगर थिएटर के लिए देखें तो केवल एक गेम पे भी बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे टाइम लगता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर उसको सारी चीजों को लाना। बस एक टेक्निक बता रहा हूँ कि घर पे आप इस तरह की चीजें करोगे, खूब मजा आएगा। अब एक काम करते हैं कि इसमें किसे लगता है कि सबसे स्मार्ट बच्चा मैं हूँ? कोई है जो सकता है कि मैं बोल सकता हूँ सर? कोई है तो कोई बोल के मुझे दिखा सकता है कोई? सर क्या बोल के दिखाना है? यस कोई, सर। मैं पूछता हूँ, अब जल्दी से कोई एक प्रॉप्स लाना है। प्रॉप्स जानते हो क्या बोलते हैं? कोई भी एक सामान लाना है अपने घर से, आसपास से, और जल्दी से लेकर आप आ जाओ कोई भी एक सामान तो आपका ले आया। फेवरेट हो। ये क्या है वो? सर एक पेपर पे रखने वाला जो होता है ना, बॉल जैसा। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा ये जो है आपका बेस्ट फ्रेंड है और ये आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपकी अच्छी बातें भी जानता है, आपकी बुरी बातें भी जानता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगर ये आपके बारे में बताना चाहेगा तो कैसे बताएगा? बोल के देखो, कुछ भी 2 लाइन बोल के देखो आप। बीना ठाकुर के नाम से जो है वो बोलेंगे, जिनके पास पेपर वेट है। सर क्या मैं बोलूं? सर क्या करना है? आपको अपने ये जैसे जैसे क्रॉप्स है, वो क्रॉप आपके बारे में बता रहा है, जैसे और अपने आप को अलग हट जाना है। सर ऐसे सर ऐसे, हाय कृष्णा बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, हाय कृष्णा बहुत स्मार्ट हो। यस, वेरी गुड। तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी आप करोगे तो बड़ा मजा आएगा। प्रॉप्स है और आपके बारे में बातें कर रहा है, इससे क्या होता है कि आप अपने को कितना जानते हो। थिएटर का मकसद है आप अपने को कितना जानते हो, लोगों को, आसपास वाले लोगों को कितने जानते हो, अपने फैमिली को कितना जानते हो, समाज को कितना जानते हो। हमें और जब सब चीज को जानेंगे तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस फील होता है हमारे अंदर। जब अपने को हम जान जाएंगे एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो टेंशन नहीं आता। पता है क्या, हम हर जगह कोई भी जाम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउन हो, ओके। तो एक काम और करते हैं, टाइम में देख रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा है, लेकिन एक काम करते हैं, ये एक्टिविटी घर पे करना आप लोग। आपको 2 प्रॉप लेना है। एक प्रॉप आपके बारे में बात करेगा, आपके बारे में बताएगा, और दूसरा कोई ऐसा प्रॉप रखना आप लोग कि जो बचपन में कभी आप जब छोटे रहे होगे तो खेला होगा उससे, फिर छोड़ दिया होगा उसको, तो वो क्या सोच रहा होगा बेचारा अकेले घर में बैठकर। उसको कूड़े वाला को दे दें, कबाड़ को दे दें, तो कबाड़ वाला को देंगे तो बेचारा बुरा फील करेगा ना, तो वो क्या सोचेगा। मैं अपना बचपन वाला ले रहा हूं। ओके, सर ये रहा। हाँ, अब एक काम करते हैं कि सभी लोग थोड़ा सा हम लेट जाते हैं, पूरा लेट जाओ, पूरा लेट जाए। सभी लोग सोना आता है ना, कैसे हम सोते हैं रिलैक्स होकर। देखो तो लेट के देखते हैं कैसे लेटना आता है आप लोग। सर हमको लेटना है। हाँ, लेटना है बेटा। अगर नहीं लेटना तो बैठ भी सकते हो, और आइज बंद कर लो, क्लोज योर आइज, बंद कर लो, आंखें बंद कर लिया आप लोगों ने? यस सर। आंखें बंद कर लो और पूरा ध्यान हम योगा में करते हैं ना, पूरा ध्यान सांस पे लगाना है और कुछ भी नहीं सोचना है, केवल अपने सांस पे ध्यान रखना है। ओके, ध्यान पूरी क्या हो नहीं हो रहा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। बोल रहा हूँ कि आप कर लो और पूरा ध्यान अपने सांस पे लगाना है, ठीक है, और सोचना नहीं है आपको।
और अब बहुत तेज अपने हाथ को रब करो, राइट हैंड को, दोनों हाथ को रब करो बहुत तेज, और अपनी आंख पे लगाओ और सीधे अपने आंख को देखो, उसको अपने हाथ को देखो, सीधे ध्यान पूरा कहीं और नहीं देखना है, हाथ पे देखना है और सोचना है कि मैं, हाँ सोचना है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, सोचा हूँ, चाहे पढ़ना हो, कुछ करना हो, एनीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए, मैं सारे एक्टिविटी कर सकता हूँ, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं जो मैं नहीं कर सकता, है ना। हाँ, क्योंकि हम हाथ के कहते ना लोग कि हाथ की रेखा में सब कुछ होती है, तो हमें हाथ से सोचना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। नाउ मैं थोड़ा सा मस्ती का, क्योंकि मैं कुछ टाइम, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट रही है? ओके यस सर। ओके, अपने बॉडी को खींचो सर ऊपर। से आ रही है। ये अब काम करते हैं कि हम लोग आजकल जानते हो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। यस सर। अब आवाज आ रही है? नो सर। नो सर। बाकी सब अपनी माइक म्यूट कर दो तो सर की आवाज अच्छे से आएगी। दिखा सकते हो, अगर आ रही है तो, नहीं आ रही है तो यूं कर लो। आ रही है? आवाज सुन पा रहे हैं हम? थोड़ी ब्रेक हो रही है सर। ओके, अब ठीक है? यस सर। ओके, हाँ मैं बोल रहा था कि सारे बच्चे आजकल हंसते ही भेज, है ना, कि जब हम क्या करते हैं, स्माइली भेज देते हैं, हमें हंसना चाहिए, जबकि हम मैसेज का काम चला रहे हैं तो ज्यादा देर स्माइल करके चला लेते हैं। आजकल से अब नया कि हम लोग लिखना शुरू कर दिया है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर। सर नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आपके साथ, क्योंकि स्क्रीन भी सही नहीं आ रही सर, ब्लर आ रही। ओके एक मिनट, एक बार सर डाटा ऑफ करके ऑन कर लो एक बार। ओके ओके, अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। आ रही है सर? यस सर। यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था बेटा, वीडियो ऑफ करके शायद नेटवर्क इशू होगा। मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग अपने स्क्रीन को समझो कि ये मेरा मिरर है, स्क्रीन जहाँ पे आप दिख रहे हो अपने आप को। ये होगा जब आप लोग कैमरा ऑन करोगे। ओके, कैमरा ऑन करो, अपने स्क्रीन पे स्माइली बनाओ, हाथ से स्माइली से बनाओगे, स्क्रीन पे स्माइली बनाना चाहिए आपको, कोशिश करो स्क्रीन के ऊपर स्माइली बनाओ। आपको नहीं, ऐसे नहीं, हाँ आपको अपने हैंड करना है, ये वेरी गुड, हाँ स्माइली बनाना है और अपने चेहरे को स्क्रीन के पास क्लोजअप ले जाना है। तभी संभव है, वही लोग ज्यादा बेटर रखेंगे। स्माइली सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। यस सर। ओके, एम आई ऑडिबल बच्चों? सर ने ये कहा कि Yes, आपको क्या sir. करना है, आपको स्क्रीन पर स्माइली बनानी है, अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन पर एक स्माइली बनानी है और आपको अपने चेहरे को उस स्माइली के क्लोज ले जाना है, बिल्कुल स्क्रीन के, और आपको अपने आप को व्यू करना है उस स्माइल करते हुए, जो आपने स्माइली बनाई है अपने आप को उस तरह से एज्यूम करना है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप लोग स्माइली Yes, बनाइए sir. स्क्रीन पर, एक स्माइली बनाइए आप स्क्रीन पर और अपने चेहरे को स्क्रीन के क्लोज ले जाइए और अपने आप को उस तरह से स्माइल करता हुआ एज्यूम कीजिए जैसा आपने स्माइली बनाया है। या वेरी गुड। ओके गुड। अब आप क्या करेंगे कि स्माइली के बाद
जोर से हंसने की कोशिश करेंगे। कैसे हंसोगे? हंस के दिखाओ। जोर से। यस, लंबा सांस लेते हैं। क्या करना देखो। वाह, वेरी गुड। बेटा एक बार हम लोग लाउड बोलेंगे, सभी लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर अनम्यूट करके सभी लोग एक साथ लाउड बोलेंगे। AOL गोल। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर क्या बोल रहे हैं? बेटा एक बार क्या करना है हमें कि LOL लोल बोलना है और जोर से हंसना है। कैसे हंसेंगे? LOL और लोल बोल के जोर से हंसेंगे। 1 2 3 वेरी गुड। एक बार अमन सबको एक बार म्यूट कर देना, सारे बच्चों को। यस सर। अच्छा, Thank सभी you. अपने माइक म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सर, ध्यान से सुनिए। ओके सर, यू कैन कंटिन्यू सर। हाँ ओके बेटा, ऐसी सारी एक्टिविटी जो है, इस तरह की एक्टिविटी जो बताया आपको, प्रॉप्स वाली एक्टिविटी हम नहीं करवा पाए टाइम कम रहने के कारण, लेकिन आप प्रॉप्स जो आपके बारे में बताता हूँ, कुछ ऐसे प्रॉप लेना जो जिसके बारे में आप मैक्सिमम बता सकते हो। कुछ क्लैपिंग एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ हंसने का एक्टिविटी कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे बहुत सारे एक्टिविटी गेम ऐसे होते हैं थिएटर में जिसको आप खूब मस्ती करोगे, अपने पेरेंट्स को भी मस्ती करवा सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good morning, sir. Have a nice day. Thank you, sir. मॉर्निंग बहुत बढ़िया। सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे सर। नाइस डे सर। गुड बाय सर। गुड बाय सर। गुड बाय सर। Okay, sir. बाय टू ऑल। बाय। जय सर, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने वर्कशॉप कराया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बच्चे एंजॉय करेंगे। हम तो ज्यादा घर पे सबसे ज्यादा परेशान हो आज के टाइम में बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून सर। सही में। Mr. Jayji, Miss Anjana, Mr. Amit ji, I convey my heartfelt thank you to you all on behalf of everyone in this August forum for the workshop on theatre for happiness of children, and I'm sure बच्चे बहुत खुश हुए हैं और बहुत enjoy किया है session को. Thank you so much for this wonderful session. थैंक यू। Thank you so much. Good afternoon, sir. Thank you, Good sir. afternoon, sir. Thank you, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. ओके बेटा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Morning, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, sir, and good morning, ma'am. Take care and stay safe. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. तो कल सुबह हम फिर